Okay, so now we will start with our next topic, that is function definition. Okay, so in last part we covered function prototype, or we can say function signature or function declaration or function header. Now the second component of functions are, or methods are, function definition. Now what is function definition? I told you in this function definition, the code what you write inside the method is known as फंक्शन डेफिनेशन. तो फंक्शन डेफिनेशन कैन बी रिटन एज, मतलब उसका एक जनरल जो सिंटेक्स है, यू कैन राइट, आप फंक्शन प्रोटोटाइप लिखोगे, वॉट एवर द फंक्शन प्रोटोटाइप इज, देन यू ओपन द ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, एंड यहाँ पर आप लिखते हो लाइन ऑफ कोट्स. दिस कंप्लीट is known as function definition. Function prototype along with the line of code is known as function definition. Okay, now I'll give you two examples of function definition. You see how it works. Okay, see, one function I have is void sum int a comma int b. Okay, braces open. This is a function called as sum, and it calculates the sum of the arguments passed. The arguments passed are int a and int b. So what it will do, it will calculate sum int s is equals to a plus b, and it will print the result, that is sopln sum is s. ठीक है, दिस इज़ अ सिंपल फंक्शन दैट कैलकुलेट्स द सम एंड प्रिंट्स इट. ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे टाइप क्या है, void. void means it is returning nothing. These two are what, arguments, or you can say parameters. What is this? This is the name of the function. Is this clear? So this is the function. ये and this braces are compulsory. These parentheses are compulsory, that marks the opening and ending of a method. Now second example you can take. Second example is int sum int a comma int b. It also calculates the sum int s is equals to a plus b, and then you write return s और बंद कर दो. अब यहाँ पर आपने क्या किया, इन दिस इज़ ऑल्सो फंक्शन डेफिनेशन. इन दिस यू आर रिटर्निंग अ वैल्यू. what kind of value you are returning? int, and int only you have mentioned over here. जो आप यहाँ पर डेटा भेजेंगे, जिस टाइप का डेटा भेजेंगे वही आप यहाँ पे रिटर्न टाइप में भी लिखेंगे. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. दिस इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन एंड दीज आर द arguments, or you can say the parameters. So is this clear, the function definition? Now okay, so function definition is clear to you. What you do, you write the function prototype along with the line of codes is known as function definition. Now you have declared a function, you have defined a function. Now how will you use a function? To use a function, you will always have to call that function. यूज़ करने के लिए आपको उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. कॉल यू कैन डू फ्रॉम any other function or the main function. आप कहीं से भी उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर से या मेन फंक्शन के अंदर से. सो हाउ वी विल डू दिस, हाउ वी विल कॉल अ फंक्शन. फंक्शन कॉल को इज़ ऑल्सो नोन एज फंक्शन इन्वोकिंग. तो फंक्शन कॉल कैसे करेंगे और फंक्शन इन्वोक कैसे करेंगे, नाउ वी विल सी दिस थिंग. ओके, now we will see how function calling is done. If you can see, this is a simple program. This is a very simple program. If you can see, in this we have created a class. एक class बनाया जिसका नाम है name of the classes. This is the name of class. ठीक, इतना तो आपको पता है, name of class. Then we have created a function void sum. ये क्या है, ये एक user defined
फंक्शन है, यूज़र ने क्रिएट किया है, आई एम द यूज़र, आई हैव क्रिएटेड इट एंड दिस इज़ PSVM. PSVM क्या होता है, एक प्री डिफाइंड, PSVM इज़ ऑल्सो अ फंक्शन फ्रॉम वेयर द वर्किंग स्टार्ट और द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है. ठीक है. सो द वन थिंग दैट यू हैव टू नोट इज़ कि जितने भी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं दे आर रिटन बिफोर द PSVM. PSVM के पहले जितने भी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आपके प्रोग्राम में, आपके क्लास के अंदर होंगे, वो सब आप लिखोगे. ठीक है. सो दिस आई हैव रिटन, दिस यू नो दिस इज़ द रिटर्न टाइप, दिस इज़ द रिटर्न टाइप, दिस इज़ द नेम एंड दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स. ठीक. एंड दीज टू लाइन आर द लाइन ऑफ कोड्स. इस फंक्शन को करना क्या है वो इन दो लाइनों से पता चल रहा है. वो एक सम निकाल रहा है और सम को प्रिंट कर दे रहा है. नाउ व्हाट इज़ फंक्शन कॉलिंग? फंक्शन कॉलिंग इज़ कि फंक्शन को जब आपको यूज़ करना होता है तो उसको कॉल करना पड़ता है. नाउ सी, यहाँ पे जो आपने ये वॉइड सम बनाया, दिस इज़ अ काइंड ऑफ नॉन स्टैटिक मेथड, क्योंकि आपने स्टैटिक तो लिखा नहीं है. स्टैटिक नहीं लिखा, इसका मतलब ये कौन सा मेथड हो गया, ये नॉन स्टैटिक मेथड हो गया. तो इफ़ इट इज़ अ नॉन स्टैटिक मेथड देन you will have to create an object to call it. आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ऐसे, याद है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते थे. यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, prog, तो हमने लिखा prog. ये हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और ये न्यू prog. दिस वी हैव डन इन क्लास एज बेसिस ऑफ ऑल computation to how to create an object. So this is a simple way of creating an object. Once the object is created, now you can call this method. How to call that method? Write the object name, that is p, that we have created, dot, and then the name of the function. The name of the function remains same as it is, जैसा आपने डिक्लेरेशन में, डेफिनेशन में बताया है. And then the list of the parameters. These list of the parameters should match the list of parameters given in the definition. टाइप भी मैच करना चाहिए एंड नंबर भी मैच करना चाहिए कि कौन सा टाइप है. टाइप भी सेम दोगे, अगर INT है तो यहाँ INT दोगे. नंबर अगर 5 पैरामीटर्स आपने पास किए हैं तो ऑल द 5 यू शुड पास. इन दिस केस देयर वर 2, सो आई हैव गिवन 2. इज़ दिस क्लियर? इतना समझ में आया? तो जैसे ही आपने ये लिखा p.sum 4,5, तो यहाँ से जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो चला गया कहाँ, कंट्रोल चला गया इस ब्लॉक पे, यहाँ पर आ गया. ठीक. अब यहाँ आ गया, फिर ये सारी लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई, और एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे ही आप यहाँ आए, आप वापस कहाँ चले आए, लास्ट लाइन. फिर उसके बाद ये कंट्रोल यहाँ आया. तो दिस प्रोसीजर इज़ कॉल्ड एज फंक्शन कॉलिंग. आपने यहाँ से इसको कंट्रोल, जैसे ही p.sum 4,5 लिखा, प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र होके गया कहाँ, वॉइड सम पर. उसने अपना दोनों टास्क कंप्लीट किया, लास्ट लाइन पर आए, फंक्शन बंद हुआ था. जैसे ही बंद हुआ था तो वापस कहाँ से कंट्रोल वापस आ गया, p.sum के नीचे. p.sum के नीचे आया, उसने देखा कि PSVM बंद है, क्लास बंद है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्लोज. सो दिस वॉज द सिंपल मेथड ऑफ फंक्शन कॉलिंग. आई होप सो दिस इज़ क्लियर. तो ये था एक फंक्शन कॉलिंग. अच्छा, इन दिस काइंड ऑफ फंक्शन कॉलिंग यू कैन सी दैट नो वैल्यू इज़ रिटर्न्ड. ठीक है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है. ठीक है. अब हम एक दूसरे टाइप का प्रोग्राम देखेंगे जिसमें वैल्यू इज़ रिटर्न्ड. अगर वैल्यू रिटर्न हो रही होगी तो क्या होगा. ठीक है, तो कुछ छोटे से चेंज करने होंगे और वो चेंजेस मैं आपको करके अभी दिखाती हूँ कि what are the changes or how the program will look when value is returned from a function. Okay, now see, this is a simple program where a function is returning
अ वैल्यू। अभी जो हमने देखा था उसमें फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, बट नाउ अ फंक्शन इज़ रिटर्निंग अ वैल्यू। वाई? बिकॉज ये जो आप देख रहे हो रिटर्न टाइप यहाँ पर मेंशन्ड है, और ये किस टाइप का है? इंटीजर। तो वैल्यू कैसी रिटर्न हो रही है? इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब जब वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ये कीवर्ड लिखना पड़ता है, ये कीवर्ड आपको लिखना पड़ता है। ये कीवर्ड ऐसे ही स्मॉल में होता है, इसमें आर कैपिटल नहीं है, कुछ नहीं है। और जो भी वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हो, इस केस में एस रिटर्न करना चाहते थे तो यहाँ पर एस लिखा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रिटर्न ब्रैकेट के अंदर एस। ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट नहीं बनाओ, इट इज़ सेम। रिटर्न एस लिखो या ऐसे लिखो, सिंपल एस, बोथ आर करेक्ट। ठीक, ओके। नाउ दूसरा चेंज कहाँ हुआ है? सेकंड चेंज जो हुआ है ये तो आपका हो गया फर्स्ट चेंज। फर्स्ट चेंज आपका है वॉइड टाइप में, हाँ ठीक है। सेकंड चेंज आपका है रिटर्न कीवर्ड में, और अब आपका एक थर्ड चेंज है। थर्ड चेंज है वो कहाँ है? इसमें फंक्शन कॉल में। फंक्शन कॉल में अभी तक आपने जब पिछली बार फंक्शन कॉल किया था तो आपने सिर्फ लिख दिया था p.sum 4,5, राइट। आपने कहीं भी यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी थी। क्यों नहीं लिखी थी? क्योंकि वो फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। बट अब ये फंक्शन कोई वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है, रिटर्न एस। ये एस किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पर अगर आपने किसी की तरफ बॉल फेंकी और वो आपकी तरफ वापस बॉल फेंकेगा तो आपको कैच करने के लिए एक एलिमेंट चाहिए ना। कैच करने के लिए आपका हैंड ओपन होना चाहिए उस पोजीशन में कि बॉल आप कैच कर सको। सिमिलरली जब इस फंक्शन को आपने कॉल किया तो उसने कोई वैल्यू रिटर्न करी, तो उस वैल्यू को रिटर्न करने के लिए आपके पास एक एलिमेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए जहाँ पर आप उसको स्टोर करो। तो आप कहाँ स्टोर कर रहे हो? एक वेरिएबल में आपने बना लिया एस। अब उसका टाइप क्या है? उसका टाइप वही होना चाहिए, इट शुड मैच द टाइप ऑफ द रिटर्न। ये मैच करना चाहिए, ये मैच करना चाहिए। जो टाइप यहाँ से रिटर्न हो रहा है वही टाइप यहाँ पर होना चाहिए। तो int जो है int टाइप रिटर्न हो रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैचिंग वेरिएबल भी कैसा बनाया? int टाइप का बनाया। मेरी सम की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू निकाल के बैठे तो रहोगे नहीं, उसको प्रिंट करोगे। तो जो पिछले प्रोग्राम में हम प्रिंटिंग का काम कहाँ कर रहे थे? सम फंक्शन के अंदर। अब वो हम वापस कहाँ करेंगे? अपने PSVM के अंदर। हमने यहाँ पर सम प्रिंट कर दिया। समझ में आया? तो देखो कंट्रोल गया कैसे। सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होता है वो स्टार्ट होता है हमेशा मेन से। तो मेन से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट, फिर आएगा इस लाइन पे सेकंड, फिर ये लाइन होगी थर्ड। जैसे ही ये लाइन हुई तो आपका कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चला गया? इस जगह पर चला गया, इस जगह पे चला गया। ये पूरा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही लास्ट पे आए तो अब आपका वापस कंट्रोल कहाँ आया? यहाँ आया, डैट इज़ फिफ्थ पोजीशन पर यहाँ आया। और यहाँ पे इसने देखा SOPLN सम इज़ एस प्रिंट करना है। एस की वैल्यू यहाँ रिटर्न आ चुकी है 4 + 5 दैट इज़ 9। तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर हम इस पे जाएंगे और इस पे जाएंगे एंड प्रोग्राम फिनिश। इज़ दिस क्लियर? इतना समझ में आया कि कैसे आपका फंक्शन कॉलिंग हो रहा है व्हेन फंक्शन इज़ रिटर्निंग अ वैल्यू। और इसके पहले हमने देखा कि हाउ द फंक्शन कॉलिंग वाज डन व्हेन फंक्शन वाज नॉट रिटर्निंग अ वैल्यू। Is this clear? Watch this 2-3 times so that you can understand the basic concept कि फंक्शन कैसे वैल्यू रिटर्न करता है, तब क्या होता है, और जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है then what happens. Okay? And now last part of this video is we will discuss about some important points of रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड अभी हमने पढ़ा कि वैल्यू रिटर्न करता है। तो हर फंक्शन में देयर इज़ ओनली वन रिटर्न इन एवरी फंक्शन। इन एवरी फंक्शन इफ़ देयर इज़, अगर है तो ओनली वन होगा, इफ़ है तो ओनली वन, अदरवाइज़ तो नहीं होगा तो चलेगा। लेकिन आप एक से ज़्यादा रिटर्न फंक्शंस रिटर्न कीवर्ड्स नहीं लिख सकते। एंड इट इज़ ऑलवेज एट द एंड ऑफ द मेथड। ये याद करने वाली चीज़ है कि लास्ट लाइन पर लिखा जाता है, लास्ट लाइन पर रिटर्न कीवर्ड लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि नो स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड आफ्टर रिटर्न। कोई भी स्टेटमेंट जो आपने रिटर्न के बाद लिखा है वो एग्जीक्यूट
नहीं होगा। अगर आपने रिटर्न लिख दिया रिटर्न एस और उसके बाद लिख रहे हैं SOPLN हेलो, तो ये हेलो प्रिंट नहीं होगा। जैसे ही रिटर्न मिला वापस आ गया कंट्रोल। तो इसीलिए रिटर्न शुड ऑलवेज बी द लास्ट लाइन ऑफ द फंक्शन। और हर फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, सिंगल वैल्यू इज़ रिटर्न। आप ऐसे नहीं लिख सकते रिटर्न S, A, B, नहीं। या आप ये नहीं लिख सकते रिटर्न S, रिटर्न B, return A. No, this is also wrong, this is also wrong. Only single value can be returned from a function. Hope so this is clear. Okay, so with this, the second part of the function chapter is that we have discussed what is function definition. Okay, one thing we have discussed, and two types of function definition we have done, and then we have done function calling. In function calling also we have seen when a method is called without a return keyword and with a return keyword, and now we have seen the properties of the return keyword. So these are some important topics under the function chapter. Please go through it twice so that you get the point clearly, and if you have any doubt you can please ask the queries.